Welcome back student in the second part of the atoms and molecule chapter. In the first part we were discussed about few things that we have classified the molecules into the three categories which were the elements, compound and the mixture, and we were also discussed about the definition and the different examples related to them. Now we have also discussed about the all postulates given by the John Dalton, and now let's go to the further portion, that what is an atom. So student, have you ever observed I have told you before that the atom is like similar to the building blocks of all matters, and this is called the atoms. Now the next question is that how big are the atoms. So atoms are very small, they are smaller than anything that we can imagine or compare with. More than millions of atoms when stacked would make a layer barely as thick as this sheet of paper. Means you can see here that the comparison of the atoms, the thickness of atom, that more than millions of atoms when stacked would make a layer barely as thick as the sheet of paper. Means millions of atoms will combine and just make a sheet of paper like thickness. So student, here in your book is given the atomic radii is measured in nanometer. So 1 upon 10 raised to power of 9 meters is equal to 1 nanometer. Means you can say that 1 meter is equal to 10 raised to power of 9 nanometers. And in this table you can see that there is given of radii of the different elements, like atoms of hydrogen has the radii of 10 raised to power of minus 10. Molecule of water has a 10 raised to power of minus 10. Molecule of hemoglobin is 10 raised to power of minus 8. Grain of sand is 10 raised to power of minus 4. Ant has 10 raised to power of minus 2. And watermelon has the 10 raised to power of minus 1 radii. And this is given in the meter. This is the unit given, the radii of different examples is given here. Now let's discuss further about the modern day symbols of atoms of different elements. So student, Dalton has worked in this also. He was the first scientist to use the symbols of elements in a tiny specific senses. When he used a symbol for any elements, he also meant a definite quantity of that elements, that is 1 atoms of that elements, so that the symbol of the elements be made from 1 or 2 letters of the name of the element. Here few diagrams is given. You can see here that this is the hydrogen, symbol of hydrogen, carbon, oxygen, phosphorus, sulfur, irons, copper, lead, silver, gold, platina and mercury. It is given by the Dalton. So student, this is very interesting to know that why and how, what is the reason behind the initial use to indicate any atoms. So student, in the beginning the names of the elements were derived from the name of the place where they were found for the first time. For example, the name of copper was taken from the Cyprus. Some names were taken from the specific colors. For example, gold was taken from the English word meaning yellow. Nowadays, IUPAC. Student, IUPAC means the International Union of Pure and Applied Chemistry. Is approved name of elements. Many of the symbols are the first 1 or 2 letters of the element's name in the English. The first letter of the symbol is always written in a capital letter, students. You know that you are habitual to know to see that helium is right like this. So the first letter should be written in the capital letter, and the second one is in a small letter we use. So student, here given few examples, you can see that the hydrogen is indicated by the H. So helium
will not written like this, because this is it make the big confusion about the hydrogen and the helium. So helium is always written in this manner, means two initial letter will taken to indicate the helium. Aluminum is or Al, and not A or L, capital letter is not used for that. And if we used to indicate the cobalt, we use C and small o, capital C and small o. And student, here is a given of very nice example, that if we used to capital letter to show the indicator or indication of the cobalt, so this is not correct, because it will remember as the carbon monoxide, means one carbon and one oxygen atom is there. So we write the cobalt like capital C and the small o. So the symbols of the some elements are formed from the first letter of the name and a letter appearing letter in the names. Examples are chlorine Cl and zinc Zn. Other symbols have been taken from the names of the elements in Latin, Germans, or Greek. For examples, you can see and observe many times that few elements are not matching with their initials. So what is the reason? So the reason is the symbol is used from the symbol have been taken from the name of the elements in the Latin and the German and the Greek. For example, the symbol of the iron is Fe from its Latin name ferrum. Sodium is Na from the nitrium. Potassium is K from the kalium. Therefore, each element has a name and a unique chemical symbols. And student, other than these examples, if you have any doubt regarding the initial of any element or the representation of any element, you can search it by its name. So student, here in the table 3.1, symbols for some elements are given, like the aluminum is Al, argon is Ar. But in your book there is given caption, student, this is the above table is given for you to refer to whatever you study about the element. But do not bother to memorize all of the in one go. It is not possible to memorize this all in one go, but gradually you will memorize it naturally, and it will easy for you when you go through it by it again and again, you will memorize it very easily. So student, this is the talk about how the element is represented. Now let's come to see about the atomic mass. So what is atomic mass, students? So here is given in your book very nicely that the most remarkable concept that Dalton's atomic theory proposed was that of the atomic mass. According to him, each element had a characteristics atomic mass. The theory could explain the law of constant proportion so well that scientists were prompted to measure the atomic mass of an atoms. Since determining the mass of an individual atoms was a relatively difficult task. Student, किसी भी जो एटम है उसके एटॉमिक मास को रिलेटिव तरीके से बताना एक बहुत ही मुश्किल का काम था. तो बहुत से जो है इसमें मेथड्स को यूज़ किया गया, बट फाइनली जो है जो यूज़ किया गया, इफ़ वी take a watermelon and if we there is given the example with the वेरी गुड डेपिक्शन दैट वाटरमेलन को लेकर के यदि हम इसे 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और फिर यदि हमारे पास कोई एक स्पेसिफिक इसका मेजरमेंट करने का नहीं है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि जैसे इसे हमने कुछ पार्ट्स में 12 पार्ट्स में इक्वली बांट दिया, और फिर हमने अगर एप्पल लिया और उसको यहाँ पर एकदम बहुत दिया हुआ है अच्छे से एक्सप्लेनेशन की यदि हियर यू कैन सी दैट द 2 apples is equal to the 1 piece of the watermelon, and if we take the any other fruit like pomegranate or the banana, so its unit will be changed. If वो 1 piece can be equal to the 2 units or 3 units, तो इस तरह से कंपेयर करके साइंटिस्ट ने क्या किया, बच्चों की कार्बन की बहुत सारे आइसोटोप्स होते हैं. लेट्स सी अबाउट द आइसोटोप्स ऑफ द कार्बन. That here is given the different isotopes of the carbon, carbon 12, carbon 13 and the carbon 14 is given. This is the different
isotopes of the carbon. And the first question is raised to all of you, that what is the isotopes actually. So the students, isotopes are the different forms of the elements, and this is known as the isotope. So students, scientists use the carbon 12 to compare the atomic mass of any element. So hydrogen is equal to the 1 unit mass of the hydrogen atom is equal to the 1/12 part 12. So this is called the mass of hydrogen atom, means mass of hydrogen atom is equal to 1 AMU, atomic mass unit. And the relative atomic mass of the atoms of an element is defined as the average mass of the atoms as compared to the 1/12 part of the mass of one carbon 12 atom. So here is the list given in your books, table number 3.2, the atomic masses of the few elements like. So nowadays we indicate it like just U, by the symbol of U only. This is given mentioned in your book also, that according to the IUPAC recommendation, it is now written as the U, unified mass, this is called, as equal to the mass of one carbon atom. Then we would assign carbon on atomic mass of 1 U, and oxygen and atomic mass as the different types of comparison with the 1/12 part of the carbon 12 atom. So this is the standard unit by which the atomic mass will compare of the different elements. Student, now a question raised further, that how do atoms exist. एटम्स जो है वो एग्जिस्ट कैसे करते हैं, है ना. तो इसके लिए हमें ये जानना होगा कि जो एटम्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द एटम्स आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. जैसे कि अगर आप लोग बहुत कुछ अभी नहीं जान रहे हैं, दिस इज़ वेरी इनिशियल एंड न्यू फॉर ऑल ऑफ यू, पर फिर भी आप लोगों ने कभी भी ऑक्सीजन को इस तरह से नहीं देखा होगा. आप लोग हमेशा O2 के रूप में ही ऑक्सीजन को देखे होंगे. सो वो यही इस लाइन में यही एलाबोरेट करना चाह रहे हैं कि एटम ऑफ मोस्ट एलिमेंट्स आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. एटम्स form molecules and ions. These molecules or ions aggregate in large number to form the matter that we can see, feel or touch. So in your book there are further explanation about the elements, and we know about the elements that the similar जो एटम्स होते हैं वो जब कंबाइन हो जाते हैं तो इस तरह से वो एलिमेंट्स को बनाते हैं. लाइक हाइड्रोजन है, उसके 2 एटम्स मिल गए, या फिर ऑक्सीजन के 2 एटम्स मिल गए, तो इस तरह से ये एलिमेंट बनाते हैं. और एंड इन आवर फर्स्ट पार्ट वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी अबाउट द कंपाउंड एंड द मिक्सचर ऑल्सो. तो कंपाउंड के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने देखे थे, जैसे कि कंपाउंड के एग्जाम्पल्स में यहाँ पर कुछ और भी मेंशन है, जैसे कि वाटर के अलावा अमोनिया है, एंड वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जाम्पल्स तो हमने पहले ही ले लिया था. तो इनमें जो है रेशियो बाय मास हम लोग देख सकते हैं कि रेशियो बाय मास इसमें वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का 1:8 है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन का 14:3 है अमोनिया में, और कार्बन डाइऑक्साइड में 3:8 का रेशियो इनमें पाया जाता है. सो स्टूडेंट, अब यहाँ तक की तो आपको क्लियर हो चुका होगा, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द फर्स्ट पार्ट अबाउट द एलिमेंट, कंपाउंड एंड द मिक्सचर. So student, now let's come to the next one, and this is the ion. What is an ion? तो इसको समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए कि आयन्स क्या होते हैं. तो देखो स्टूडेंट, जब कंपाउंड्स जो है कंपोज्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कंटेन चार्ज्ड स्पीशीज़. जो कंपाउंड्स होते हैं वो आपको पता है कि 2 अलग अलग प्रकार के जो एटम्स होते हैं वो आपस में एक पर्टिकुलर रेशियो में मिलते हैं और फिर वो कंपाउंड बनाते हैं. लाइक वी आर टेकिंग एग्जांपल्स अगेन, जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल्स है या कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल्स हैं. तो इसमें क्या होता है कि इसमें एक मेटल और एक नॉन मेटल कंटेंट्स होते हैं जिसमें कि चार्ज होता है. अब ये चार्ज क्या होता है, तो ये चार्ज होता है या तो पॉजिटिव चार्ज होता है या तो फिर वो नेगेटिव चार्ज
होता है। फॉर दैट द जो नेगेटिव चार्ज होता है उसे एनायन कहते हैं एंड द पॉजिटिव चार्ज आयन इज कैटायन। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने सोडियम क्लोराइड को का एग्जाम्पल कई बार लिया हुआ है, ये इसे साधारण नमक कहते हैं। एंड पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड सोडियम आयन, जो सोडियम आयन है वो उसका पॉजिटिव चार्ज पोर्शन है और जो क्लोरीन है होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है। तो अब हम इसे क्लोरीन नहीं कहेंगे, तब हम इसे कहेंगे क्लोराइड आयन। जब ये आयन के रूप में हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे तब हम इसे कहेंगे क्लोराइड आयन। सो आयन्स में कंस्टिट्यूट ऑफ अ सिंगल चार्ज एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम्स। तो कभी कभी ग्रुप ऑफ एटम्स में भी ये हमें रिप्रेजेंट होता है, जैसे कि मान लिया OH आयन, OH माइनस है, OH नेगेटिव है, तो ये जो OH है ये दोनों के लिए ही होगा, ऑक्सीजन के लिए भी और हाइड्रोजन के लिए। तो ये जो OH नेगेटिव जो है वो है ग्रुप ऑफ एटम्स का एग्जाम्पल, और सिंगल चार्ज एटम्स का एग्जाम्पल है ये या तो सोडियम का पॉजिटिव और ये क्लोरीन में जो नेगेटिव आयन है इसे। तो इससे आपको क्लियर हो चुका होगा कि जो भी नेगेटिव चार्ज होगा, ये जैसे कि क्लोराइड है, तो इसे हम कहेंगे एन आयन, ओके, और जो पॉजिटिवली चार्ज रहेगा उसे हम लोग बोलेंगे कैटायंस। तो इसमें आगे और आपकी बुक में दिया गया कि दैट हैव अ नेट चार्ज ऑन देम, नेट चार्ज ऑन देम जो कि Na प्लस और Cl माइनस के बारे में हमने अभी एनायन और कैटायन के बारे में देखा। तो अ ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग अ चार्ज इज नोन एज द अ ग्रुप ऑफ एटम। अगर एटम का जो ग्रुप होता है, मतलब एक से ज़्यादा यदि वहाँ पर एटम है तो वो ग्रुप बना रहे हैं, तो अ ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग अ चार्ज इज नोन एज द polyatomic ions. We have learned more about the formation of ions in chapter 4. चैप्टर 4 जो हमारा फर्दर चैप्टर है, जो कि इसके बाद हम लोग जस्ट पढ़ने वाले हैं, उस चैप्टर में हम लोग उसके बारे में और भी आगे स्टडी करने वाले हैं, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम्स वाले चैप्टर में। तो उससे आप लोगों को और भी ज़्यादा। नाउ स्टूडेंट लेट्स कम टू द फर्दर टॉपिक। इस पार्ट में, सेकंड पार्ट में हम थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं कि राइटिंग केमिकल फार्मूलाज, जो केमिकल फार्मूलाज होते हैं उसे हम कैसे लिखते हैं। पर उसके लिए पहले आपको ये जानना होगा कि केमिकल फार्मूला एक्चुअल में होता क्या है। तो द केमिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज अ सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन। ये किसी भी कंपाउंड का सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है, और द केमिकल फार्मूला ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स कैन बी रिटन इजीली। इसे लिखने का अगर आप एक बार समझ जाएंगे तो ये बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत ही आसान होता है। सबसे पहले स्टूडेंट हमें ये जानना होगा कि सिंबल क्या होते हैं। हाइड्रोजन के लिए हम H यूज़ करते हैं, और हीलियम के लिए हमने He यूज़ किया है ना, लिथियम के लिए Li है ना, बेरिलियम के लिए हमने Be यूज़ किया, बोरॉन के लिए हम लोग कैपिटल B। तो फर्स्ट लेटर वी यूज़ फॉर इज एज अ कैपिटल लेटर, और जो सेकंड लेटर होता है उसे हम स्मॉल के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहला तो सिंबल का पता होना बहुत आवश्यक है, एंड जो एलिमेंट की कंबाइनिंग की कैपेसिटी जो होती है वो जानना बहुत ही ज़रूरी होता है केमिकल फार्मूला लिखने के लिए। तो द कंबाइनिंग पावर या कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज इट्स वैलेंसी, जिसे कि हम कहते हैं वैलेंसी, है ना। तो सिंबल के अतिरिक्त हमें वैलेंसी का भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो वैलेंसी कैन बी यूज्ड टू फाइंड आउट हाउ द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट्स विल कंबाइन विद द एटम्स of another element to form a chemical compound. The valency of the atom of an element can be thought of an hands or arms of an atoms. देखो बहुत अच्छी तरह से आपको ये समझाया गया है कि जैसे हम वैलेंसी को हाथ की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग्स हैव 2 आर्म्स, है ना, हमारे 2 हाथ होते हैं, 2 आर्म्स हैं, हमारी 2 भुजाएं हैं, एंड एन ऑक्टोपस हैज़ 8. इफ वन ऑक्टोपस हैज़ टू catch hold of a few people, यदि an octopus has to catch hold of a few people in such a manner that all the 8 arms of the octopus and both arms of all the humans are locked, यदि मनुष्य के दोनों आर्म्स और जो ऑक्टोपस है उसके पूरे 8 आर्म्स लॉक होना चाहिए, तो आप समझ सकते हैं, आपके दिमाग में तुरंत ये आ जाएगा कि हाउ मैनी ह्यूमंस डू यू थिंक द ऑक्टोपस कैन होल्ड? यस, योर आंसर इज वेरी करेक्ट, 4 ह्यूमन बींग्स, है ना। तो अगर हमने ऑक्टोपस को O मान लिया एंड ह्यूमन बींग्स को हमने H मान लिया, तो इससे क्या फॉर्मूला बनेगा? OH4, क्योंकि
OH4 चार मनुष्य को के दोनों जो आर्म्स हैं वो अगर लॉक हो जाएंगे तो किसी के भी जो आर्म होगा वो फ्री नहीं बचेगा। तो इनका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? OH4। तो द सब्सक्राइब 4 इंडिकेट्स द नंबर ऑफ ह्यूमन हेल्ड बाय द ऑक्टोपस। तो द वैलेंसीज ऑफ सम कॉमन आयंस आर गिवन इन टेबल 3.6। वी विल लर्न मोर अबाउट वैलेंसी इन द नेक्स्ट चैप्टर। हम जो है वैलेंसी के बारे में और भी हम जो है नेक्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। हियर यू कैन सी दिस इज गिवन इन योर चैप्टर नंबर 4 नेक्स्ट चैप्टर में। जैसे कि हाइड्रोजन है, इसमें सिर्फ एक एटम होता है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक जो है एटम यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है, ये तो न्यूक्लियस है। और हीलियम में 2 है, तो यहाँ पर आपको 2 जो है एटम्स दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह से यहाँ पर लिथियम है ना, बेरिलियम है, बोरान है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, नियॉन है ना, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर है ना, और इसी की तरह आगे भी है क्लोरीन और आर्गन। तो ये जो है आप डिटेल जो है वो नेक्स्ट चैप्टर में हम इसके बारे में देखें। सो स्टूडेंट, लाइक द एग्जाम्पल ऑफ द ऑक्टोपस एंड ह्यूमन बींग्स, यदि हम इसे हैंड की तरह माने तो आपको ये फॉर्मूला जो है वो OH4 बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। उसी तरह से अलग अलग एलिमेंट्स की वैलेंसी के आधार पर वो जो होती है वो अन्य मेटल्स या नॉन मेटल्स के साथ में कॉम्बिनेशन करती है और कंपाउंड बनाती है। यहाँ पर 3.6 टेबल में नेम एंड द सिंबल्स ऑफ सम आयंस दिए हुए हैं, तो हम कुछ को देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर सोडियम है, तो सोडियम का जो है वो Na+ है, सोडियम प्लस आप लोग देख सकते हैं। और जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया है कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो होता है कैटायन एंड एनायन नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये जो है सोडियम वो है कैटायन। ये कैटायंस के एग्जांपल्स हैं सोडियम Na+, पोटेशियम K+, सिल्वर Ag+, और कॉपर जो है Cu+। इसी तरह से मैग्नीशियम, ये सब जो है ये सिम्बॉल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये सारे पॉजिटिव चार्ज वाले हैं। और यहाँ पर ये सारे क्या है? मेटल्स हैं। और इधर जो है इस तरफ आप मिडिल कॉलम में आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो सारे हैं ये नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स हैं, जिसमें कि आपको दिखाई दे रहे हैं कि हाइड्राइड है H-, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ऑक्साइड, सल्फाइड एंड नाइट्राइड। तो जब भी हम इसे आयन के रूप में कहेंगे तो कभी भी इसे नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन इस तरह से नहीं कहेंगे, बल्कि इसे आयोडाइड, ऑक्साइड, सल्फाइड और नाइट्राइड के रूप में कहेंगे। अब देखिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स जो हैं वो पॉली एटॉमिक आयंस के दिए हुए हैं। पॉली एटॉमिक्स आयन के अंतर्गत अमोनियम देख रहे हैं आप। अमोनियम में NH4+ है, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये नाइट्रोजन के लिए भी है और हाइड्रोजन के लिए, तो इसे हम अमोनियम कहेंगे। कभी भी इसे हम अलग अलग रीड नहीं करेंगे। उसी तरह से हाइड्रोक्साइड है OH- है ना, नाइट्रेट है तो हाइड्रोजन कार्बोनेट है HCO3- है ना, हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसी तरह से कार्बोनेट CO3 2 टाइम्स माइनस है, यहाँ पर 2 ऐसे माइनस है, तो इसीलिए हमने इसे जो है 2- कहा है। प्लीज डोंट स्केयर टू सी लॉट्स ऑफ आयंस, पॉलीएटॉमिक्स आयंस, नॉट मेटेलिक आयंस एंड द मेटेलिक आयंस। ये धीरे धीरे ही आपको समझ में भी आ जाएंगे और अच्छी तरह से धीरे से आपको याद भी हो जाएगा। सो स्टूडेंट, दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ आवर चैप्टर atoms of the and the molecules. So till this part 2 you have properly understood about the ions. Now we will continue the further portion in our next part. So till then, thank you and have a nice day.